morning. Welcome back to another lecture of structural organization in animals. We were talking about blood in the last class, and then we spoke about components of the blood, and then we completed something called as RBCs. है ना, extensively हमने RBCs के बारे में बात किया, correct? And various features of properties of RBCs. We spoke about different properties of RBCs. That RBCs are responsible for viscosity, which is one of the most important point, correct? Generally asked in the exams. Then we also spoke about polycythemia vera. We also spoke about Rolex formation. Rolex formation is nothing but RBC का stack of coin-like appearance. Stack of coin-like appearance. Cool. So moving ahead, we have to talk about WBCs. We have to finish up blood today. Let's see if we can also finish up lymph. But blood का anyways complete करना ही, ठीक है? So let's start off with the next topic, that is WBCs. So WBCs, white blood cells. White blood cells में we spoke about, we categorized white blood cells under two major categories, that is granulocytes and agranulocytes. Granulocytes constitute 68% of your total WBC count, whereas agranulocyte constitutes of 32% of your total RBC, total WBC count. ठीक है? So specifically talking about granulocytes. अब हमको बात क्या करना है? granulocytes, उसकी प्रॉपर्टीज जो है डायग्राम में लिखा हुआ है बेटा. प्रॉपर्टीज हम वापस नहीं लिखेंगे यहाँ पे. प्रॉपर्टीज डायग्राम में आप देखकर बना सकते हो, बिकॉज प्रॉपर्टीज में कुछ भी नहीं है. There's nothing but they have, अगर एसिडोफिल है तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? They have acidophilic cytoplasm. दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? They have bean shaped nucleus. अगर एसिडोफिल के बारे में बात हो रही है, ठीक है? So now what we will be concentrating on, the other factors, that is we will be trying to understand the functions of WBCs. हर एक WBC का एक specific अलग function है. Let's try to understand what is that. Cool. So what will we be talking about? We are talking about the first category under WBC. We spoke about granulocytes. Cells characterized by presence of granules. ठीक है? Under granulocytes we have the first category, first type of cell, that is eosinophil. Eosinophils, on an average we also spoke about the number, that is 1 to 2% of your total TLC, correct? So eosinophil का specific lifespan लिख लेते हैं बेटा. Properties लिखेंगे. Lifespan is 10 hours, है ना? हमने बात किया था कि टोटल WBCs अप्रोक्सीमेटली कितने हैं आपके पास? 10,000 per 100 ml of blood, करेक्ट? We also spoke about कि WBC कौन से फ्रैक्शन में मिलते हैं. एक अगर मैं सेंट्रीफ्यूज करता हूँ, so at the bottom I get RBC का फ्रैक्शन, and उसके ऊपर I get a Buffy coat which includes WBC and platelets, and over the Buffy coat we have plasma. Cool. Come back. So lifespan जो है इनका, lifespan is approximately 10 hours. So 10 hours तक वो जिंदा रहेंगे, काम करेंगे, 10 घंटे के बाद मर जाएंगे. Where are they majorly destroyed? Understand this. ठीक है? When you talk about WBCs, एक होता है immature WBC जिसमें कोई function नहीं कर सकता, right? एक होता है mature WBC और एक होता है over mature WBC. So what we want is the mature WBC which is functioning. जो over mature WBC है, they lose the antigenic particles. They specifically lose the surface proteins. जिसका मतलब अभी इनका कोई काम नहीं है, बुरे हो गए उसमें. So those over matured RBCs are finally destroyed in your spleen. Correct? So lifespan कितना है बेटा? 10 hours. So now when you talk about the properties, कुछ प्रॉपर्टी है जो डायग्राम में आपको लिखा है. अब क्योंकि ये eosinophil है, इनकी साइटोप्लाज्म कैसे होगी? eosinophilic या फिर acidophilic cytoplasm. Why acidophilic? Because they get stained with the acidic dyes. Correct? So second property is they have acidophilic. Third property is they have acidophilic cytoplasm, and they also have acidophilic granules.
Correct? Now let's understand what is the role of these granules in this particular case. Eosinophil के बाद हम basophils पढ़ेंगे, but basophils समझने के basophils अगर आप समझोगे तो ही आप eosinophil का मतलब समझ पाओगे. Cool. So let's understand this particular category. So lifespan लिख लिया, lifespan के बाद directly nucleus कैसा है? Biloid nucleus. ये सब चीजें मैं लिख नहीं रहा हूँ बेटा. It is self understood. Let's only directly jump on to the topic, that is functions. अब NCERT इस चीज बोलता है that function, पहला function है it resists infection. It resists infection. ठीक है. अब ये कैसे इन्फेक्शन को फाइट करता है? नाउ अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर केस वी स्पोक अबाउट फेगोसाइट, राइट? न्यूट्रोफिल एक फेगोसाइट है, मोनोसाइट फेगोसाइट है और मैक्रोफाज ये फेगोसाइट है. बट व्हेन यू टॉक अबाउट eosinophil also shows phagocytic activity. So in other words, slightly phagocytic. थर्ड फंक्शन क्या है उनका? They decrease the signs of allergy. ठीक है. फोर्थ फंक्शन क्या है? They release an enzyme called, they release the enzyme histaminase. हिस्टामिन क्या करता है? हिस्टामिन इन्फ्लेमेशन कॉज करता है. समझ लेते हैं हिस्टामिन क्या है, यहां पे समझ लेंगे. ठीक है. और हिस्टामिन क्या करेगा? आपके जो कैपिलरीज है, ठीक है, कैपिलरीज का ल्यूमेन, कैपिलरीज की डायमीटर इंक्रीज कर देगा, जिसकी वजह से प्लाज्मा विल लीक आउट इन योर सरफेस टिश्यू लीडिंग टू स्वेलिंग, एंड दैट इज द साइन ऑफ एलर्जी. अगर कोई टाइप की एलर्जी होती है तो हमारे बॉडी में कैसे दाने आते हैं एंड या फिर स्वेलिंग आती है, पूरी एलिवेशन आती है, छोटे छोटे दाने आते हैं, हाइट्स आते हैं. सो ये क्या है? दिस दाने या फिर सिंपल मुंगी ने काटा तो भी अपन को ऑन दैट पर्टिकुलर दी साइट ऑफ इंजरी या साइट ऑफ बाइट, वहां पे द टिश्यू गेट्स अ लिटिल रेज्ड. दैट इज ड्यू टू लीकिंग ऑफ द प्लाज्मा. कूल. तो साइंस ऑफ एलर्जी, अगर इंटरनल एलर्जी है, बॉडी में एलर्जी होती है, बॉडी में ऑटोमेटिकली एलर्जी ठीक हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ eosinophil. and eosinophil क्या करता है? Histaminase will break down histamine. ठीक है. So decreases the signs of allergy. It releases the enzyme by releasing the enzyme histaminase. ठीक है. दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरा फंक्शन लिख लेंगे. The number increases in case of, the number of eosinophil increases in case of worm infestation. अगर कोई वर्म इन्फेस्टेशन है, एस्केरिस का इन्फेस्टेशन है या टेपवर्म इन्फेस्टेशन है, तो स्पेसिफिकली टेपवर्म, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो टेपवर्म अगर बॉडी में चला गया है या फिर एस्केरिस अगर बॉडी में चला गया है या फिर कोई टाइप की अगर वर्म चली गई है, सो द नंबर ऑफ eosinophils सडनली इंक्रीज, एंड ये eosinophil जाकर अटैक करेंगे, वो पर्टिकुलर वर्म को अटैक करेंगे. दे विल ट्राई एंड बाइंड टू द वर्म एंड दे विल ट्राई एंड डिस्ट्रॉय दिस पर्टिकुलर वर्म. ठीक है. सो it increases, the number increases in case of worm infestation, in case of hay fever, in case of Teniasis. Again, Teniasis is a worm infestation. ठीक है. and other allergic या also referred to as hypersensitive disorders. ठीक है. The increase in the number is called as eosinophilia. ठीक है बेटा. So that is all with respect to the functions with respect to your eosinophils. ठीक है. तो आपको याद क्या करना है? स्लाइटली फेगोसाइटिक एक्टिविटी. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया which of the following cell are non phagocytic,
इमेजिन करो फॉलोइंग सेल्स आर नॉन फेगोसाइटिक और ऑप्शन में अगर आपको उन्होंने अगर ऑप्शन में ये दिया है मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, इओसिनोफिल्स, अगर ये चार ऑप्शन है तो यू विल हैव टू कंसीडर दिस मोनोसाइट, सॉरी मोनोसाइट नहीं, ऑप्शन है लिम्फोसाइट था, सी ऑप्शन लिम्फोसाइट था। तो लिम्फोसाइट स्पेसिफिकली कोई फेगोसाइटिक एक्टिविटी नहीं दिखाते बेटा, ठीक है। बट टेक्निकली हमने तो ये भी पढ़ा है कि इओसिनोफिल भी नहीं दिखाते, बट अगेन आई टोल्ड यू दैट इज व्हाई वी रेट स्लाइटली फेगोसाइटिक। अगर ऑप्शन में दिया है, अगर ऑप्शन में लिम्फोसाइट दिया है तो ऑप्शन लिम्फोसाइट ही सिलेक्ट करना पड़ेगा व्हिच इज नॉन फेगोसाइटिक, ठीक है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा ऑप्शन दिया है दैट फेगोसाइटिक सेल्स आर मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल्स, ये चार ऑप्शन दिए, क्या बोला मैंने, मैक्रोफेज, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल्स एंड इओसिनोफिल, तो ये चारों में से एक ऑप्शन चूज करना है। अब मेरे को 101% पता है कि पहले तीन ऑप्शंस आर फेगोसाइटिक इन नेचर, सो बचता क्या है, eosinophil. So in that question, based on your option, your answer will differ. Cool. Moving ahead with basophils. बेसोफिल्स की साइटोप्लाज्म कैसे होगी, बेसोफिल, ठीक है। नंबर कितना है, अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 1% ऑफ टीएलसी। लाइफ स्पैन कितनी है बेटा इनकी, लाइफ स्पैन इज 14 आवर्स ऑन एन एवरेज, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फंक्शंस, ठीक है। साइटोप्लाज्म कैसा है, बेसोफिलिक न्यूक्लियस कैसा है, एस शेप और ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस, ठीक है। फंक्शंस, पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस, जो अपने मास्ट सेल के लिए पढ़ा था, पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूसेस हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। हिस्टामिन क्या है, वैसोडायलेटर, हेपेरिन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर एंड हेपेरिन क्या है, एंटी कोएगुलेंट, ठीक है। हमने ये बात किया था कि हिस्टामिन क्या करेगा, हिस्टामिन इज एसोसिएटेड विद इंक्रीजिंग द वैस्कुलैरिटी, इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी या फिर इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ कैपिलरीज। डायमीटर इंक्रीज हो गया तो सेल्स के बीच में गैप आ गई, सेल्स के बीच में गैप आ गई तो प्लाज्मा लीक आउट होगा, देयरबाय गिविंग द साइंस ऑफ एलर्जी। सिमिलरली सेरोटोनिन क्या है, वैसोकंस्ट्रिक्टर, ठीक है। दोनों एक साथ रिलीज नहीं होंगे बेटा, बिकॉज़ इफेक्ट का कैंसिल आउट हो जाएगा। So serotonin is released during injury. If there is any injury to your tissue, right, the blood vessels there constrict to limit the blood supply. ठीक है, ऑटोमेटिकली ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। आई टोल्ड यू, जब भी आपको कोई टाइप की इंजरी होती है, ट्रॉमा होती है, बॉडी गेट्स इनटू अ लाइफ सेविंग मोड। जैसे हमारे मोबाइल में भी बैटरी सेविंग मोड होती है ना, जो चीजें हमको काम की नहीं है, जो चीजें हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, उसमें स्पेसिफिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर बैटरी सेविंग मोड है, अगर वो ऑन कर दिया तो ऑटो बार बार ऑटो लॉक होगा, स्क्रीन जल्दी ऑफ हो जाएगी, ब्राइटनेस कम होगा। तो व्हाट इज योर मोबाइल डूइंग, इट इज पॉसिबली डूइंग ऑल दैट मेथड्स टू सेव ऑन द बैटरी, correct? Similarly, your body also tries to do all that particular methods to save your own body, save your own organs from getting failed. ठीक है बेटा, तो सेरोटोनिन क्या करेगा, वैसोकंस्ट्रिक्शन करेगा when during injury. If there is any slight injury, there will be constriction so that the blood supply will be limited and leakage जो limit होगा, the blood loss जो होगा कम होगा। हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट, वेरी क्लियर, एंटीकोगुलेंट एसोसिएशन विद ब्लड को फ्लूइड नेचर में ही रखता है, ठीक है। सो दिस वाज द मेजर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू बेसोफिल्स। सेकेंड फंक्शन को हम लिखेंगे इन टिश्यूज इट मॉडिफाइज टू फॉर्म
mast cells, modifies to form mast cells. Cool. So ये दो फंक्शन है खत्म. Basophils का इतना ही फंक्शन है बेटा. And also we have to understand this is the cell which is seen in the least amount. Okay. So specifically अगर मैं बात करूँ सबसे कम amount, because WBCs में क्वेश्चन ये आते हैं. Arrange for ऐसे दे देंगे क्वेश्चन. Arrange the cells in the increasing number of their count. सबसे ज्यादा क्या है अपने पास? Increasing number of their count. सबसे ज्यादा क्या है बेटा हमारे पास इंक्रीजिंग नंबर्स. अगर मैं इंक्रीजिंग नंबर में जाना है, स्मॉलर से ज्यादा लेके जाना है, तो यू हैव टू राइट बेसोफिल फर्स्ट. बेसोफिल के बाद इओसिनोफिल, इओसिनोफिल के बाद मोनोसाइट, मोनोसाइट के बाद आता है तुम्हारा लिम्फोसाइट, और लिम्फोसाइट के बाद आएगा न्यूट्रोफिल्स. सो ये ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है. सो बेसोफिल्स, दैट इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू बेसोफिल्स. अब the next one which we have to talk about is neutrophils. अब neutrophils के बारे में बहुत सारी चीजें हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है. neutrophils के बारे में क्या क्या पता है कि neutrophils are stained by both acidic and basic stains. दोनों स्टेन से वो स्टेन हो जाएंगे, ठीक है. Let's try to understand neutrophils. Total count is 65% of TLC and lifespan is 12 hours on an average, ठीक है. फंक्शन लिख लेते हैं. अब now since they have multi-lobed nucleus, I told you they are multi-lobed nucleus. तो कभी कभी कुछ सेल में 3 हो सकते हैं, कुछ सेल में 4 लोब के न्यूक्लियस हो सकते हैं, कुछ में 5 हो सकते हैं. सो हेंस दे आर आल्सो रेफर्ड टू एज PMNL. PMNL क्यों बोलते हैं बेटा? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. फुल. So that is with respect to neutrophils, ठीक है. neutrophils का फंक्शन हम क्या रखेंगे? That they are phagocytic in nature. Phagocytic granulocyte. It is the only granulocyte which is phagocytic in nature. बाकी दोनों granulocyte phagocytic नहीं कंसिडर करेंगे. इसमें से ये जो है slightly phagocytic है, ठीक है. So it is phagocytic granulocyte. Hence it is also called micropoliceman. ठीक है, साइज में छोटी है इसीलिए micropoliceman. ठीक है. माइक्रो because it is comparatively smaller than monocyte or smaller than macrophage, but it is phagocytic in nature. तो micropoliceman, ठीक है. So this is with respect to this is with respect to your granulocytes. खत्म, इतना ही है. न्यूट्रोफिल्स में इतना ही पढ़ना है. phagocytic है और सबसे ज्यादा और एक प्रॉपर्टी लिख लेते हैं that present in largest amount. present in largest amount. ठीक है बेटा. इतना समझ गया बेटा, ठीक है. एक प्रॉपर्टी को भी लिख लेते हैं. The number increases, their number increases in case of bacterial infection. The number increases in case of bacterial infections. ठीक है. So this is with respect to your granulocytes. अब बात करते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स की. ग्रैन्युलोसाइट्स इतना ही है बेटा. मैं फ्रेम से हट जाता हूं तो कॉपी कर लेना. ठीक है. चलो, come back. Now we have to talk about granulocytes.
और ग्रैन्युलोसाइट्स में सबसे पहला वाला कौन सा था बेटा? मोनोसाइट। मोनोसाइट हमने पढ़ा था कि मोनोसाइट मॉडिफाइज टू फॉर्म मैक्रोफाज। मोनोसाइट्स मॉडिफाइज टू फॉर्म मैक्रोफाज। ठीक है। The second one is organocytes. Organocytes again which forms 32% of your total TLC. ठीक। Under granulocyte you have the first one. The first one is called as monocyte. ठीक है। अब मोनोसाइट का नंबर वैल्यू कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 6% ऑफ टीएलसी। 6% ऑफ टीएलसी। द लाइफ स्पैन इज 24 आवर्स। ठीक है। दीज आर द लार्जेस्ट WBCs। और न्यूक्लियस कैसा है इनका? न्यूक्लियस इज बीन शेप या किडनी शेप या हॉर्स शू शेप। ठीक है। दे आर द लार्जेस्ट WBCs। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, वन मोर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, दे हैव बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। इनमें ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, बट अगर स्टेन करना है दे आर बेसोफिलिक। सो वी विल यूज बेसिक डाइस, बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। ठीक है। So let's write down the functions now. Functions क्या होंगे बेटा? पहला, first function is there phagocytes of blood. Second property लिखेंगे in tissues में क्या करेंगे? They will modify themselves into macrophages. In tissues they modifies into macrophages. They modify into macrophages. ठीक है। So tissues में वो macrophages के जैसे काम करेंगे, macrophages के जैसे modify हो जाएंगे। Now here again talking about they will receive certain type of cell to cell receptors. That's it. ठीक है। इसके अलावा ये होने के बाद, फेगोसाइटिक सेल्स होने के बाद स्पेसिफिकली, सो दिस इज द मेजर फंक्शन। इतना ही है मोनोसाइट्स में, आपको इतना ही पढ़ना है। ठीक है। फेगोसाइटिक की नेचर है लार्जेस्ट WBC बेसोफिलिक साइटोप्लाज्म। बस खत्म। आगे बढ़े। मोनोसाइट के बाद भी है, नेक्स्ट इज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स। ठीक है। लिम्फोसाइट्स में वी विल टॉक अबाउट 26% of TLC. Lifespan is 5 to 7 days. अब लिम्फोसाइट में देयर आर बी मेमोरी सेल्स और बी मेमोरी लिम्फोसाइट्स, जिसकी लाइफ स्पैन 6 मंथ्स से मतलब 3 मंथ्स टू 6 मंथ्स हो सकती है। ठीक है। नो लिम्फोसाइट्स आर दोस प्राइमरी सेल्स जो आपकी इम्यूनिटी के लिए काम करेंगे। एंड हाउ आर दे फंक्शनिंग इन इम्यूनिटी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है। सो और क्या प्रॉपर्टी है? दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? They are the smallest WBC. They are the smallest WBC, and also they will have basophilic cytoplasm. ठीक है। Functions.
ठीक है। फंक्शंस में फर्स्ट दे आर द प्रिंसिपल सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, प्रिंसिपल सेल्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। कंटिन्यूइंग विद द फंक्शंस हियर, मैं आपको भी एक चीज ये बता रहा हूं, उसके टाइप्स, ठीक है। सो लिम्फोसाइट के दो टाइप है बेटा, कौन से? बी सेल एंड टी सेल। यू हैव बी लिम्फोसाइट एंड यू हैव टी लिम्फोसाइट। यहां पे लिखता हूं बेटा मैं, differentiates into B lymphocyte and T lymphocytes. B lymphocytes are associated with, B lymphocyte will again differentiate, ठीक है, differentiate into B plasma and B memory, ठीक है। B lymphocyte will differentiate into B plasma and B memory। ये कब होगा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इमेजिन करते हैं कि आपके बॉडी में एक नया बैक्टीरिया या वायरस एंटर कर चुका है। सो दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स। आपने देखा रहेगा कि चिकन पॉक्स फॉर दैट पर्टिकुलर मैटर, लाइफ में एक ही बार चिकन पॉक्स होता है मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स को। क्यों? बिकॉज फर्स्ट टाइम व्हेन योर बॉडी एनकाउंटर्स चिकन पॉक्स वायरस, it takes time to understand how the virus appears, it takes time to understand how, what are the virus के एंटीजेनिक पार्टिकल्स, उसके सरफेस एंटीजेंस कैसे हैं, कौन से हैं, ठीक है। सो प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होता है ना बेटा, थोड़ा सा स्लो होता है, बट बॉडी में मेमोरी सेल्स, आई टोल्ड यू दैट वंस दीज मेमोरी सेल गेट द इंफॉर्मेशन दैट दिस इज द टाइप ऑफ प्रोटीन वी नीड टू प्रोड्यूस टू फाइट दिस टाइप ऑफ एंटीजन। तो अगर ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी प्री स्टोर्ड है, प्री रेक्विजिट इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, सो व्हेन देयर इज अ सेकेंडरी एनकाउंटर ऑफ द डिजीज, सेकेंडरी एनकाउंटर ऑफ द पैथोजन, द ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव टू वरी, है ना, कि सेकेंडरी एनकाउंटर अगर हो रहा है तो फास्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो जाएंगे और वायरस ने सिम्टम, वायरस या बैक्टीरिया ने सिम्टम दिखाना ही नहीं है, राइट। उससे पहले वायरस का नंबर इंक्रीज होने से पहले या बैक्टीरिया का नंबर इंक्रीज होने से पहले these lymphocytes will take charge on it and they will destroy all the types, ठीक है। सो T lymphocyte की टाइप्स पहले यहां पे ले लेते हैं, then we will talk about the primary and secondary responses, ठीक है बेटा। सो T lymphocyte के 4 टाइप्स हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। TH, TC, NK, TS। T helper cells, TH stands for T helper, C stands for cytotoxic, या इसको ही बोलते हैं किलर टी सेल्स, These are your natural killer cells and these are your suppressor, ठीक है। T helper cells को ही मैं दूसरा नाम बोलूंगा CD4+। CD4 is the type of antigen, the type of surface antigen which they possess. The cells, they have a specific type of antigen. Antigen क्या है? सरफेस प्रोटीन, है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रोटीन होते हैं उसको एंटीजेंस बोल सकते हैं बेटा, बिकॉज़ ये मार्कर के जैसे काम कर रहे हैं, राइट। सो टी हेल्पर सेल्स के ऊपर CD4, CD स्टैंड्स फॉर क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन। नाम बताया देखो, क्लस्टर। इट इज अ क्लस्टर ऑफ प्रोटीन व्हिच लीड्स टू डिफरेंशिएशन बिटवीन टी हेल्पर एंड TC, T साइटोटॉक्सिक। T साइटोटॉक्सिक को हम बोलेंगे CD8+ सेल। क्यों? बिकॉज इसमें CD4 रिसेप्टर है, इसलिए CD4+, इसमें CD8 रिसेप्टर है तो CD8+, ठीक है। बोथ ऑफ देम आर क्लस्टर
transfer of protein which will differentiate, which will help differentiate T helper from TC. ठीक है, NK cell and T suppressor cell, NK cells and T suppressor cells. So हम let's try to understand the physiology with respect to how are they fighting with the infections. ठीक, so let's try to understand कि पहला हम लोग बात करते हैं एंटीजन प्राइमरी 1 डिग्री का मतलब है प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी एनकाउंटर ऑफ पैथोजन। अब पैथोजन के लिए मैं यूज करूंगा एंटीजन। तो जैसे ही प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है बेटा, जैसे ही प्राइमरी रिस्पॉन्स आता है तो देयर इज डिफरेंशिएशन ऑफ बी सेल्स, differentiation of B lymphocytes, and there is differentiation of T lymphocytes. Differentiation of B lymphocytes and differentiation of T lymphocytes. अब T lymphocyte differentiate होके क्या बनाएंगे? T lymphocyte differentiate होके बनाएंगे 4 टाइप, ठीक है। कौन से है ये? चार डिफरेंट टाइप्स बनेंगे बेटा, 4 डिफरेंट टाइप के सेल्स बनेंगे। दैट इज TH सेल्स बनेंगे, TC सेल्स बनेंगे, NK सेल्स बनेंगे और TS सेल्स बनेंगे, ठीक है। सो व्हेन देयर इज अ प्राइमरी एनकाउंटर दी लिम्फोसाइट, फटाफट लिम्फोसाइट अलग अलग टुकड़ियों में बढ़ जाएंगे, अलग अलग टाइप में बढ़ जाएंगे, ठीक है, एंड दे विल स्टार्ट टेकिंग अप द फंक्शन। आई टोल्ड यू इट इज टेक्निकली अ वॉर, ये सब आपके सेना नायक है, ठीक है। सो एब्सोल्युटली टी हेल्पर सेल विल डू इट्स ओन फंक्शन एवरीवेयर इन एनी पर्टिकुलर वॉर। महाभारत की वॉर में अगर मैं बात करूं, सो एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैज हैड इट्स ओन एबिलिटी, राइट। अर्जुन वाज वेरी गुड इन आर्चरी एंड भीम वाज वेरी गुड इन रेसलिंग। सो एवरी पर्टिकुलर इंडिविजुअल हैड देयर ओन स्पेशलिटी, राइट, एंड दे यूज्ड टू गाइड और गार्ड दैट पर्टिकुलर group of individuals. Similarly, T helper cells, TC cells, they are very specific. T helper or T helper बनाएंगे, TC और TCC cells बनाएंगे, NK और NK cells बनाएंगे, and TS और TS cells बनाएंगे, ठीक है। TH cells जो है, TH cell, चलो स्टार्ट करते हैं with respect to B lymphocyte। T helper cells का काम क्या है? It will release a component called as lymphokines. क्या है? Lymphokines. Lympho मतलब lymphocyte बनाने वाला, काइन, काइन का मतलब क्या है? काइनेटिक मतलब एक्टिव, करेक्ट, एक्टिव फंक्शनिंग। सो T helper cell will produce lymphokine, and जैसे ही B lymphocyte को lymphocyte मिलता है, these B lymphocyte will now differentiate into B memory, sorry, B plasma cell and B memory cells। समझा? जब तक TH सेल लिम्फोकाइन नहीं रिलीज करेगा तब तक B लिम्फोसाइट को मैसेज ही नहीं मिलेगा एंड B लिम्फोसाइट अपने जैसे ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही as soon as lymphocyte का amount in lymphokains का amount increase होगा, B lymphocyte will get information and they will differentiate into B plasma and B memory, ठीक है। So B plasma cells का function क्या है? B plasma cells का function is antibody production, antibody production। So antibody production को help करने वाला काम कौन कर रहा है? T helper cells, hence they are called as helper, ठीक है। कैसे हेल्प कर रहा है आपको समझ गया, ठीक है। B memory cell will keep the information of the antibody, B memory cell will keep the information of the antibody, ठीक है। अब ये B memory cells क्या करेंगे? If there is a secondary response, if in the secondary response मतलब इमेजिन करो कि सेम एंटीजन दूसरी बार बॉडी में एंटर कर रहा है, body is used to that antigen, so whenever there is a secondary response, this
memory cell will again differentiate into B plasma and B memory. समझ पा रहा है? तो ये बी मेमोरी सेल की लाइफ स्पैन ज्यादा होती है बेटा, है ना? हमने लिखा है कि 5 to 7 days, बट बी मेमोरी सेल्स की लाइफ स्पैन है अप्रोक्सीमेटली 6 more than 6 months. ठीक है, क्योंकि अगर सेकेंडरी इंफेक्शन हुआ तो यही बी मेमोरी सेल है जो डिफरेंशिएट होंगे इनटू बी प्लाज्मा. अब आई टोल्ड यू दैट बी मेमोरी सेल आर हैविंग द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस एंटीबॉडी, करेक्ट? सो इफ दे डिफरेंशिएट इनटू बी प्लाज्मा, द बी प्लाज्मा सेल डू नॉट हैव टू आइडेंटिफाई कि एंटीजन नया है, अरे उनके पास ऑलरेडी कोई इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इंफॉर्मेशन के हिसाब से दे विल अगेन डू एंटीबॉडी प्रोडक्शन. ठीक है, वैसे कंटिन्यू होगा साइकिल. अब नेक्स्ट अगर वापस एनकाउंटर हुआ तो वही बी मेमोरी सेल, ये बैकअप जो है, ये बी मेमोरी सेल विल डिफरेंशिएट इनटू 2 टाइप्स. वेरी क्लियर ऑन दैट? सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर B lymphocyte associated with your humoral immunity, T lymphocyte associated with your cell mediated. एक सेल दूसरे सेल को मीडिएट करेगा, रेगुलेट करेगा, ऑर्डर देगा, कंट्रोल करेगा. ठीक है, सो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसलिए टीसी सेल सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करेंगे. ठीक है, TH सेल, T सेल्स, NK सेल्स एक्सेट्रा. TC सेल्स का फंक्शन क्या है? इट डिस्ट्रॉयज virus infected cells. अब वायरस का इन्फेक्शन अलग तरीके से होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन अलग तरीके से होता है. बैक्टीरिया कैसे करता है? बैक्टीरिया will enter into your body, it will take nutrition from your neighboring tissue, it will take nutrition from the neighboring tissue. Understand this? Whereas virus does not take nutrition. Virus is non-living. Outside the body it is non-living, तो उसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, so virus don't take up vitamins or proteins, or they don't eat, but bacteria do, right? Bacteria they feed on oxygen. Viruses को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बेटा. ठीक है, so bacteria feeds on oxygen, bacteria feeds on the nutrients which you consume, and bacteria बहुत सारा काम करेंगे और सेल्स को डिसइंटीग्रेट. अभी इनको बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, और न्यूट्रिशन अपने आप सेल खुद ही थोड़ी दे देगा न्यूट्रिशन, ये ले लो मेरा न्यूट्रिशन ले लो. तो टू डिस्ट्रॉय दैट, टू डिराइव न्यूट्रिशन, द बैक्टीरिया विल प्रोड्यूस सर्टेन टॉक्सिन्स. नाउ दीस बैक्टीरियल टॉक्सिन बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट है. टॉक्सिन्स जो बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है माइक्रो अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज टॉक्सॉइड. टॉक्सिन का छोटा पोर्शन इज टॉक्सॉइड. ठीक, सो बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस टॉक्सॉइड्स, और ये टॉक्सॉइड्स क्या करेंगे? जो सेल्स है जिधर बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जो सेल्स को डीजेनरेट करेंगे. व्हेन दी सेल्स विल डीजेनरेट, उसके अंदर की मटेरियल रिलीज हो गई, और अंदर की मटेरियल रिलीज होगी, बैक्टीरिया विल फीड ऑन दैट. सो दैट इज हाउ बैक्टीरियल इन्फेक्शन. यही होता है टीबी में. टीबी में क्या होता है? टीबी में देयर इज फॉर्मेशन, पूरे लंग्स के अंदर लंग्स के टिश्यूज गल जाते हैं लिटरली. इट इज जस्ट लाइक मेल्टिंग ऑफ वैक्स, है ना? लिटरली टिश्यूज को, जो सॉलिड टिश्यूज है, फाइबर्स होते हैं, वो सब गल जाते हैं. देयर इज अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, राइट? टीबी में प्लूरल फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है, बहुत ज्यादा फ्लूइड का अक्यूमुलेशन होता है. ग्रैन्युलोमा बोलते हैं उसको बेटा. ठीक है, सो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बैक्टीरिया. बट व्हेन यू टॉक अबाउट वायरसेस की बॉडी अगर आप देखते हो तो कुछ भी नहीं है वायरसेस के पास. व्हाट डू दे हैव इज जस्ट अ जेनेटिक मटेरियल एंड अ प्रोटीन कैप्सिड, अ प्रोटीन कोट. और इनकी प्रोसेसेस के लिए इनको ऑक्सीजन नहीं लगती, कुछ भी नहीं लगता. Unless, but what do? They enter into your cell and they integrate their DNA into your DNA. अगर RNA है तो पहले वो RNA से DNA बनाएंगे और फिर वो इंटीग्रेट कर देंगे into your host chromosome. और host DNA मतलब बूम फिल्टर, वायरस बादशाह कर क्या रहा है? वायरस is trying to feed its genetic information into your genetic information such that when your cell is translating certain proteins, when your cell is making certain proteins, by the process of translation, it will also make viral proteins. समझ में आ गया बेटा? So बूम फिल्टर बात क्या है? मैं मेरे लिए तो प्रोटीन बना रहा हूं, तो साथ साथ में बिकॉज वायरस का जीन इंटीग्रेटेड है, आई विल ऑल्सो मेक वायरल प्रोटीन्स. अगर वायरल प्रोटीन बन गए तो इमीडिएटली डीएनए डिसइंटीग्रेट होता है एंड वायरल प्रोटीन नाउ फॉर्म्स
capsid and more viruses are formed, and this takes place in fraction of second. इतना बोलने में मेरे को इतना टाइम लग रहा है, but this takes place. अब मैंने जितना टाइम में बोल दिया तब तक millions of virus ने already form कर लिया होगा. Did you understand this? So बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया को खत्म करना पड़ेगा अगर बैक्टीरियल इंफेक्शन कम करना है, बट वायरसेस को खत्म करने के लिए वायरल जीन को खत्म करना पड़ेगा. एंड वायरल जीन को खत्म करने के लिए वायरस के साथ ऑल दैट हेल्दी सेल्स, नाउ दे आर नॉट हेल्दी बिकॉज दे आर इन्फेक्टेड बाय वायरस, ऑल दो सेल्स जिसमें वायरस का इन्फेस्टेशन है या वायरस का जेनेटिक मटेरियल, उसको मारना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो बोलते हैं ना जैसे रेसिडेंट इविल में यही हुआ था, है ना. ऐसे लोग बोलते हैं कि चाइना ने बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए टू फाइट कोविड 19 कोरोना वायरस को फाइट करने के लिए, बिकॉज चाइना की जैसे ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि चाइना ने जो स्टेप्स लिए वो हम कोई नहीं ले सकता. मतलब टेक्निकली what are they logically talking about? They are talking about complete electrocution and complete death of the individual who was या incineration, live incineration. अगर कोई जैसे रेसिडेंट इविल में ये होता ना, अगर कोई वायरस से इन्फेक्टेड है, राइट, तो बाकी लोगों को बचाने के लिए वो एक इंसान को जला दो या वो एक इंसान को मार दो, राइट. वेरी सिमिलर टू दैट इज योर वायरस का अटैक. वायरस को खत्म करने के लिए वो सारे सेल्स को खत्म करना पड़ेगा जिसके अंदर वायरल जीन हो. If that is not efficiently done, the virus will relapse again. The viral diseases might relapse because the genetic information dormant state में चली गई है, and when your immunity goes down, virus diseases will relapse. यही होता है नागिन. सुना है नागिन डिजीज, है ना. हर्पीज बोलते हैं इसको, हर्पीज हिंदी में बोलते हैं नागिन. ठीक है, तो there are boils and lesions which are formed over your body. हर्पीज एक बार एक इंसान को हो गया, the person is never free of herpes. जब भी उसकी, बिकॉज इसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी डीएनए में है, तुम्हारे कोई सेल में है, whenever the person's immunity goes down, ठीक है, the virus will show its symptom. Very clear? So TC cells क्या करते हैं, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं. कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं कि इमेजिन करो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये गया तुम्हारा टीसी सेल उसके पास. अब ये टीसी सेल क्या करेगा, दे विल बाइंड, मतलब दोनों के बीच में रिसेप्टर दोनों के बीच में एंटीजन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म होंगे. इसका रिसेप्टर और इसका द CD8 रिसेप्टर विल बाइंड विद द वायरस इन्फेक्टेड सेल. अब पता कैसे चलेगा कि ये सेल वायरस इन्फेक्टेड है? Once the viral gene is integrated into your cell, healthy cell, the viral proteins are, मतलब कुछ specialized antigenic particles express होते हैं on the surface. मतलब बोलने का मतलब कैसा है, कैसे पता चलेगा कि इस इंसान को शॉक लगा है कि उसके बाल खड़े रहेंगे. सिमिलरली कैसे पता चलेगा कि ये सेल वायरस इन्फेक्टेड है कि उसके भी बाल खड़े रहेंगे, मतलब टेक्निकली उसके भी प्रोटीन्स अलग होंगे. सो पूरे ग्रुप में से, पूरे झुंड ऑफ कार में से मैं टैक्सी पहचान सकता हूं, तो ऐसे ही पूरे झुंड ऑफ सेल में से ये सेल वायरस इन्फेक्टेड सेल को पहचान सकते हैं. ठीक है, सो हाउ डू दे डू इट? दे रिलीज सर्टेन साइटोटॉक्सिक ग्रैन्यूल्स एंड दीज ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड एज ग्रैनजाइम्स. ठीक है, क्या बोला मैंने? ग्रैन्यूल्स आर कॉल्ड एज ग्रैनजाइम, ग्रैन्युलर एंजाइम. इसको एमालगमेट करके मोल्ड बनाया. How does they do it? How do they do it? तो ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये तुम्हारा न्यूट्रोफिल है, सॉरी टीसी सेल है, ये टीसी सेल उसके पास गए. अब ये टीसी सेल अपना कंटेंट, अपना ग्रैन्यूल्स रिलीज करेंगे इस पे, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स पे. एंड दोस ग्रैन्यूल्स आर लाइक पोरिन्स, परफोरिन्स. पोरिन मतलब ये क्या करेंगे, पोरिन परफोरिन क्या करेंगे, वायरस इन्फेक्टेड सेल के साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन पे, वायरस इन्फेक्टेड सेल के सेल मेम्ब्रेन पे दे विल कॉज स्पोर. ठीक है, ये टॉक्सिक प्रोटीन्स है, ये टॉक्सिक प्रोटीन्स उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, वायरस इन्फेक्टेड सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे पोर्स क्रिएट करेंगे. एंड बिकॉज ऑफ दीस पोर्स द कंटेंट्स साइटोप्लाज्म विल लीक आउट एंड दैट इज हाउ द सेल्स डाई. ठीक है, मतलब दे आर नॉट डूइंग फेगोसाइटिक एक्टिविटी, दे आर डूइंग साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू रिलीजिंग ग्रैनजाइम्स. ठीक है, सो ये हो गया साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. जो साइटोटॉक्सिक टी सेल कर रहा है, it is very specific to virus infected cell. NK cell भी वही करेगा, but this is very specific to cancer cells. I told you कि दिन में आपके जैसा आपका डाइट चल रहा है, there are several cancer cells which are being formed, but immunity इतनी strong है कि वो कैंसर सेल को पकड़ के खत्म कर देंगे.
In certain cases, if the cancer cells escape the immunity, that is when a person might have a chance of getting cancer. ठीक है, कैंसर सेल में भी यही है, बिकॉज कैंसर सेल्स का भी जीन पागल हो गया, कैंसर सेल खुद पागल हो गए, unnecessary वो डिवाइड कर रहे हैं, राइट? एंड दैट unnecessary division is due to their faulty genetic makeup, correct? So इनका भी genetic makeup थोड़ा सा उल्टा सीधा है, so they will also be, इनको भी झुंड में से हम पहचान सकते हैं. कौन पहचानेगा? NK cells. ठीक है. TS cells क्या करेंगे? TS cells are associated with suppressing the immunity once your war is being done, है ना? Once your war is being done, that particular cell अब तुम्हारा जो बटालियन है उसको थोड़ा सा शांत होना पड़ेगा, है ना? सो वो शांत कराने का काम कर रहा है T suppressor cells. अदरवाइज शांत नहीं किया तो क्या होगा बेटा? They will start damaging they will start destroying the healthy tissues of your body. Cool. So that is with respect to your antigens, that is with respect to your WBC successfully. फटाफट मैं फ्रेम से हट जाता हूँ, फटाफट इतना आप स्क्रीन पॉज कर सकते हो या फिर आप लिख सकते हो बेटा, so that आपको क्लियरली बोर्ड दिखे. चलो हो गया. So let's move on to the next topic now. The next topic is blood platelets. एक प्रॉपर्टी यहां पे एक्स्ट्रा ऐड कर लो. They are the cells from lymphoid lineage. Lymphoid lineage इनका खानदान अलग है बेटा. Lineage का मतलब है खानदान. ठीक है, बाकी सब एक जगह पे, ये अकेले एक जगह पे. Cool. Moving ahead. Let's try to understand platelets. अब platelets का काम क्या है? Platelets का मेजर काम है आपका blood clotting. Now, how are they associated with blood clotting? We like to understand the blood clotting mechanism. ठीक है, blood clotting mechanism आपको वापस आने वाला है, बट वो चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है. इस चैप्टर में इतना डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग. हमसे ऊपर से जो बेसिक हमारे टॉपिक वाइज टेस्ट में जितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ऑन दैट कॉन्टेक्स्ट वी विल डू इट. बट इन अ चैप्टर कॉल्ड बॉडी फ्लूइड्स में ये वापस नहीं पढ़ाऊंगा. ठीक है, ये वापस आएगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में, वापस नहीं पढ़ेंगे बेटा, इसलिए मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं यहां पे. Cool. So the next type of cell, that is the third type of cell, is blood platelets. ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स की ऑन एन एवरेज लाइफ स्पैन इज 10 days. ठीक है, इनका नंबर, द नॉर्मल काउंट इज 2 लाख टू 3 लाख. ठीक है. Now when you talk about blood platelets, the process of formation of blood platelets is called thrombopoiesis. पहले आपने पढ़ा होगा कि ब्लड प्लेटलेट्स को ही थ्रोम्बोसाइट बोलते थे बेटा. ठीक है, बट नाउ वी विल अंडरस्टैंड दैट थ्रोम्बोसाइट इज अ डिफरेंट कांसेप्ट. इट इज non-mammalian cells में, non-mammalian organisms में इसको थ्रोम्बोसाइट बोलेंगे. कैरेक्टरिस्टिकली they are different. तो हमारा नाम है blood platelets. So formation of the blood platelets is called as thrombopoiesis. अब thrombopoiesis का प्रोसेस कैसा है? thrombopoiesis
So you had a hematopoietic, ये प्रोसेस है बेटा, ठीक है? You had a HSC, hematopoietic stem cell. ये hematopoietic stem cell will differentiate into myeloid progenitor. Myeloid progenitor. उसके बाद they will form a cell called as megakaryocyte. Megakaryocyte. These megakaryocyte will disintegrate. They will disintegrate and they will lead to the formation of blood platelets. ठीक है? So hematopoietic stem cell will differentiate into myeloid lineage. Myeloid lineage के बाद बनेगा megakaryocyte. बताया था हमने megakaryocyte are large cell with large nucleus. इतना बड़ा न्यूक्लियस हमारा, इतना बड़ा सेल हमारा ब्लड क्लॉटिंग का काम नहीं कर पाता, तो इसलिए वो सेल डिसइंटीग्रेट होकर बन गए ब्लड प्लेटलेट्स. ठीक है बेटा? So this is what we need to understand with respect to blood platelets and thrombopoiesis. Now we have to understand कि blood platelets इसका काम क्या है, then we will try to understand the blood clotting mechanism. ठीक है? फंक्शन क्या है ब्लड क्लॉटिंग इसका, प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा मैं, क्योंकि उस वो जगह में तो ब्लड क्लॉटिंग एक्सप्लेन करने को लगेगा. ठीक है? So let's try to understand the functions. So function में पहला फंक्शन हम ये लिखेंगे, helps in blood clotting. बट कैसे, वो हम लोग उधर पढ़ेंगे. ठीक है? ब्लड क्लॉटिंग कैसे हेल्प कर रहा है वो बात पढ़ेंगे थोड़े टाइम. दूसरा है releases P platelet derived growth factor, PDGF. Platelet releases platelet derived growth factor. ये दो मेजर काम है, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर. ठीक है? प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इन लिवर. ठीक है? Now let's try to understand platelet derived growth factor क्या है, वो भी बात करेंगे. उसका काम क्या है, clot retraction. So now let's try to understand the process of blood clotting. Cool? इसी में ही हम पढ़ेंगे the process of blood clotting. Now before we talk about blood clotting, we have to understand the bleeding time and clotting time. Bleeding time is 1 to 2 minutes and clotting time is 5 to 8 minutes. ठीक है? ब्लीडिंग कितने टाइम के लिए, अगर कोई इंजरी हुई, छोटी सी स्लाइड इंजरी है, तो 1 to 2 मिनट्स के लिए ब्लीडिंग होता है मैक्सिमम, एंड देन द क्लॉटिंग टेक्स प्लेस. राइट? सो ये क्लॉटिंग करवाने के लिए अपार्ट फ्रॉम प्लेटलेट्स देयर आर सेवरल फैक्टर्स. Now in totality there are 12 factors but 13 in number. ठीक है? अब इसको फैक्टर क्यों नाम दिया? बिकॉज़ फैक्टर कुछ प्रोटीन है, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन है, कुछ नॉन प्रोटीन है, इसलिए हमने इसको कॉमनली फैक्टर बोल दिया है. तो कुछ भी रहेगा तो चलेगा. ठीक है? So how many factors you have? 12 factors, but number में कितना है? 13 factor. because ये ऑर्डर हमने नहीं दिया है. और so clotting factors, let's try to understand the name of the clotting factors. Clotting factors, इसको स्टैंडर्ड कन्वेंशंस क्या है? The standard conventions, पहला तो आपको रोमन नंबर में लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5. पहले 5 को क्लिक करते हैं. So first clotting factor is your fibrinogen.
First clotting factor is your fibrinogen. Second clotting factor is your prothrombin. Second clotting factor is prothrombin. F, fibrinogen. Second is prothrombin. Third is thromboplastin. Thromboplastin. Fourth is calcium plus 2 ions. ठीक है, इसीलिए मैंने बोला ये सब प्रोटीन है, ये लिपोप्रोटीन है बेटा. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज लिपोप्रोटीन, बाकी सब प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के नेचर के. ठीक है. फिफ्थ one is called as labile factor. Labile factor. Sixth factor is called as no factor, या called as hypothetical factor. ठीक है, hypothetical factor ये लिख लो क्या, इधर जगह नहीं है, इसमें कोई जगह कंज्यूम हो जाएगी, लिख लेते चलो. या इट इज आल्सो कॉल्ड एज hypothetical. hypothetical मतलब अज्यूम किया हुआ फैक्टर. सो hypothetical factor. ठीक है, नो फैक्टर. तो इसलिए मैंने आपको बोला कि सिक्स्थ फैक्टर अभी निकाल दिया है लिस्ट में. जब कन्वेंशनली जब हमने कॉलेज टाइम्स में पढ़ा था तो दैट टाइम वी हैड सिक्स्थ फैक्टर एज एन, उसका नाम था, बट अभी इन्होंने लिस्ट में से निकाल दिया. बट दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दी सिक्स्थ फैक्टर, निकल गया तो दे डोंट वांट टू डिस्टर्ब दी सीक्वेंस, इसलिए हमने लिखा इसको नो फैक्टर. ठीक है. सेवेंथ फैक्टर इज कॉल्ड एज प्रोकन्वर्टिन. Proconvertin, also called as stable factor. ठीक है. इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट है, दैट इज एट फैक्टर इज एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर. एंटी-हीमोफिलिक ए फैक्टर, इसी को बोलेंगे AHA, एंटी-हीमोफिलिक ए फैक्टर. मतलब deficiency of factor 8 causes hemophilia. Hemophilia is the same disease, Queen's disease जिसको बोलते हैं. सेम डिजीज जो क्वीन विक्टोरिया को थी, और क्वीन विक्टोरिया ने अपने पूरे लेगेसी में पूरे मेल्स को ये डिजीज दे दी. ठीक है. सो 8th. 9th is called as anti-hemophilic. Deficiency of this causes hemophilia A. The deficiency of this causing hemophilic B. Anti-hemophilic factor, anti-hemophilic B factor, AHB. ठीक है. इसके एब्सेंस, एंटी-हीमोफिलिया मतलब एब्सेंस रहा तो हीमोफिलिया होगा, अगर प्रेजेंट रहा तो हीमोफिलिया नहीं होगा, इसलिए एंटी-हीमोफिलिक फैक्टर. ठीक है. 10th factor is called as Stewart factor. 10th factor is called as Stewart factor. 11th factor. ठीक है. 11th factor इसी को बोलते हैं ना, हीमोफिलिक बी को बोलते हैं क्रिसमस फैक्टर. ठीक है. 11th फैक्टर को बोलेंगे एंटी-हीमोफिलिक सी फैक्टर. ठीक है. 10th हो गया ना. 10th, 11th, 12th factor is referred to as fibrin stabilizing factor. You are also called as Hagman's factor. 12th. ठीक है. 13th factor is called as Lachy-Lawrence factor. ठीक है. सिर्फ नाम याद करना है, फटाफट चलो याद कर दे. फैक्टर 1 is fibrinogen, factor 2 is prothrombin, factor 3 is thromboplastin, factor 4 calcium, factor 5 is labile. Factor 5 is labile factor. Labile मतलब जल्दी इजीली डिजेनरेट हो जाएगा एकदम. Labile is prone to damage. 6th factor is no factor. 7th factor is prolactin या stable. देखो labile stable ऐसे याद करो ऑर्डर में. ऑर्डर याद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट. दे विल आस्क यू 6th फैक्टर क्या है, 8th फैक्टर क्या है, 9th फैक्टर क्या है. ठीक है. इसमें से इंपॉर्टेंट ये पहले 3 तो है ही.
1 2 3, ये तो बाय हुक और क्रुक आपको याद करना ही है। इसके अलावा फैक्टर 8 बी सी ये याद करना है, और फैक्टर 5। ठीक है, इतने आपको याद करना ही पड़ेगा, इन्हीं बाय हार्ट करना पड़ेगा। 6th फैक्टर, 7th फैक्टर हो गया, 8th फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिया, AHA फैक्टर, 9th is AHB factor, 10th is Stewart factor, 11th is AHC factor, 12th is Heitman's factor and 13th is Lacy-Lorentz factor। आपको फैक्टर ये सारे याद करने हैं, बट क्लॉटिंग मैकेनिज्म में सारे का यूज आपको नहीं करना है। जितना हमारे सिलेबस का कॉन्टेक्स्ट है उतना ही हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस इन क्लॉटिंग। अब क्लॉटिंग या फिर क्लॉटिंग क्यों होगा? when there is blood and when there is injury to your blood vessels, जब इंजरी होगी तब ब्लड लीक होगा। अब ब्लड लीक होने से प्रिवेंट होने के लिए ब्लड क्लॉटिंग होती है, मतलब अगर आपको कोई बाहर इंजरी होती है, ठीक है, तो देयर आर सरफेस कैपिलरीज व्हिच ब्रेक, these capillaries will release blood and ये ब्लड को क्लॉट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बात करता हूँ, आपका वॉश बेसिन है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, और वॉश बेसिन में बर्तन धो कर इतना मेश वर्क, इतना सारा कचरा जमा हो गया है, राइट, एंड द कचरा इज ब्लॉकिंग द ड्रेन, सो द पानी कैन नॉट ड्रेन आउट, करेक्ट। सेम चीजें हो रही है, अगर वो कचरा निकाल दिया तो पानी ड्रेन आउट होगा, सेम टू सेम चीज यहाँ पे हो रही है। पाइप है आपका ब्लड वेसल, ये पाइप टूट गया, ठीक है, अब ये पाइप को अगर जोड़ा नहीं गया तो द अगेन एंड अगेन ब्लड विल ooze out and blood will leak out and the person might die because of extreme blood loss। ठीक है, तो वहां पे प्लम्बिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, वहां पे इमीडिएटली सीलिंग की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सो द ब्लड वेसल्स आर सील्ड बाय ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, हाउ डज दिस टेक प्लेस? तो क्लॉटिंग दो टाइप की हो सकती है, एक तो एक्सटर्नल इंजरी हो सकती है, एक्सटर्नल इंजरी के लिए क्लॉटिंग हो सकती है, एक तो इंटरनली भी बहुत सारी इंजरी होती है ना बेटा, इंटरनली भी बहुत सारी इंजरी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल टीबी के पेशेंट्स बहुत सारे खांसते हैं तो देयर आर डैमेज टू इंटरनल ब्लड वेसल्स, जिसकी वजह से ब्लड स्प्यूटम निकलता है, ब्लडी स्प्यूटम इज म्यूकस प्लस सलाइवा, ब्लडी स्प्यूटम। किडनी स्टोन्स अगर किसी को है तो स्टोन के शार्प एजेस की वजह से भी इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है। सो ब्लीडिंग दो टाइप के हैं, करेक्ट। बाहर का ब्लीडिंग को रोकना बहुत ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू दैट इंटरनल ब्लीडिंग। क्यों? बिकॉज इंटरनली हेपेरिन प्रेजेंट है, राइट, तो इंटरनली ब्लड विल नॉट क्लॉट ऑन इट्स ओन। देखो ब्लड क्लॉट होने के लिए एक और फैक्टर क्या है, हेपेरिन। अगर हेपेरिन को कैसे तो इनएक्टिवेट कर दिया, ब्लड विल स्टार्ट क्लॉटिंग, बट इंटरनली ब्लड में हेपेरिन है तो देयर क्लॉटिंग बिकम्स अ चैलेंज, करेक्ट। तो इंट्रिंसिक पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल क्लॉटिंग। So intrinsic pathway is comparatively slower and it takes large amount of factors, whereas extrinsic factors comparatively it requires less amount of factor and it is quicker. क्यों? क्योंकि बाहर हेपेरिन नहीं है। So one of the factor by intrinsic mechanism is slower than the extrinsic mechanism is the presence of heparin in the internal that is in the intrinsic blood pathway या clotting mechanism। ठीक है, तो let's try to understand clotting mechanism। क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ठीक है, दो पाथवे हैं इसके, मैंने आपको बताया, और दोनों पाथवे एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, और दोनों कॉमन पाथवे की तरफ आते हैं। कॉमन पाथवे इज दोनों घूम फिरकर एक ही पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे आएंगे। ठीक है, तो पहला पाथवे क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे। I told you intrinsic pathway is due to damage to the blood vessels internally, और ये है एक्सट्रिंसिक पाथवे। यहां पे डैमेज टू दी ब्लड वेसल, डैमेज टू दी आउटसाइड ब्लड वेसल। ठीक है, डैमेज टू ब्लड वेसल्स
here there is damage to the tissue, damage to the tissue and damage to the external blood vessel, damage to the tissue. So जैसे ही कोई डैमेज होती है बेटा, जैसे ही कोई डैमेज होती है, the platelets will disintegrate. ठीक है, प्लेटलेट्स डिसइंटीग्रेट होंगे और प्लेटलेट्स से रिलीज होगा थ्रोम्बोप्लास्टिन. देखो नाम बताया थ्रोम्बोप्लास्टिन. प्लास्टिन, अभी इसको प्लास्टिन का मतलब आप प्लास्टर याद कर लो. थ्रोम्बोप्लास्टर, प्लास्टर प्लास्टर जोड़ के रखता है. तो थ्रोम्बोसाइट के अंदर, थ्रोम्बोसाइट को अपनी आर्किटेक्चर पे बांध के कौन रखता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है. सो व्हेन देयर इज एनी टाइप ऑफ ट्रॉमा और एनी टाइप ऑफ इंजुरी, the thromboplastin will be released. But how are the thromboplastin released? By the damage to the blood vessels. That is, damage to your blood vessel, and blood vessel की damage की वजह से क्या हो जाएगा? Platelets will start disintegrating. Platelets फूटने लगेंगे. So platelets फूटेंगे तो क्या रिलीज होगा? थ्रोम्बोप्लास्टिन. आग लग गई. ठीक है. थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे ही ब्लड में आ गया, पूरा का पूरा क्लॉटिंग मैकेनिज्म विल स्टार्ट. राइट. सो प्लेटलेट्स काम क्या कर रहे हैं? Based on the external trauma or external injury, the platelets will disintegrate, and as soon as the platelets disintegrate, the platelets will release thromboplastin. जैसे ही thromboplastin blood में आ गया, फटाफट तुम्हारा clotting का mechanism will start. ठीक है. So since it is damage to the blood vessels, the platelets will disintegrate and the platelets will release thromboplastin. So we will write release of thromboplastin. अब ये एक्सटर्नल है तो हम बोलेंगे रिलीज ऑफ इसको मैं शॉर्ट में लिखूं चलेगा क्योंकि फिर वो जगह नहीं हो रही है. रिलीज ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है. T dot plastin. Here release of tissue thromboplastin है एक ही बेटा. टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है एक ही है, बट ये क्योंकि टिश्यू से रिलीज हो रहा है इसलिए नाम टिश्यू दे दिए. ये इससे रिलीज हो रहा है, ब्लड वेसल से डायरेक्टली इंटरनली रिलीज हो रहा है, इसमें सिर्फ थ्रोम्बोप्लास्टिन. ठीक है. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो गया. अब जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हो जाता है बेटा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, ठीक है, both of them under the influence of a important ion, that is important factor. थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा फैक्टर है आपका? फैक्टर 3. थ्रोम्बोप्लास्टिन इज फैक्टर 3. जैसे ही फैक्टर 3 आता है, in the presence of factor 4, that is calcium plus 2 ions. ठीक है. अब मैंने आपको वही बताया कि एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे दोनों के पास कॉमन पाथवे होगा. अगर एक्सट्रिंसिक इंजरी हुई तो ऐसा पाथवे जाएगा, अगर इंट्रिंसिक इंजरी हुई तो ऐसा पाथवे जाएगा. वेरी क्लियर. तो हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे. सो अंडर द इन्फ्लुएंस, जैसे ही थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होंगे तो कैल्शियम प्लस 2 आयंस विल एक्टिवेट, राइट, दे विल एक्टिवेट एन एंजाइम कॉल्ड एज thrombokinase. They will activate an enzyme called as thrombokinase, or also called as prothrombinase. ठीक है. एंजाइम है, ASE is the enzyme. This is not the factor. जहां जहां पे फैक्टर यूज हो रहा है उसके ऊपर फैक्टर लिखूंगा, नंबर लिखूंगा. ठीक है. So again they will release they will activate the enzyme. ठीक है. अब नाम बता रहे हैं prothrombinase, मतलब it has to do something good to prothrombin. Prothrombin जो है it is produced in the inactive, ये inactive form है, pro लगा है ना इसलिए inactive है. So prothrombin क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा into prothrombin को कन्वर्ट करेगा into thrombin. ठीक है. तो ये इसीलिए नाम क्या दिया? prothrombinase. But why thrombokinase? Thrombokinase इसलिए नाम दिया है because थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो गया, और एक्टिवेट काइनेज हियर रेफर्स टू एक्टिविटी. काइनेटिक का मतलब क्या? एक्टिव है ना, काम कर रहा है. थ्रोम्बिन, सो थ्रोम्बिन को एक्टिव करने वाला, थ्रोम्बिन को काम कराने वाला इज थ्रोम्बोकाइनेज. राइट. सो व्हाट डज थ्रोम्बोकाइनेज डू? थ्रोम्बोकाइनेज विल facilitate the conversion
प्रोथ्रोम्बिनेज को कन्वर्ट करेगा, प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ये पहला फंक्शन है उसका, ठीक है, नाम से आपको समझ में आ गया, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। दूसरा उसका रोल है, it also inactivates heparin, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दो फंक्शन है एंजाइम का, पहला फंक्शन कन्वर्जन, दूसरा फंक्शन इनएक्टिवेशन ऑफ हेपारिन, ठीक है। तो जैसे ही थ्रोम्बिन पिक्चर में आ गया, जैसे ही थ्रोम्बिन ब्लड में आ गया, ठीक है, नाउ थ्रोम्बिन विल कन्वर्ट fibrinogen into fibrin, तो अब थ्रोम्बिन एंजाइम के लिए एक्ट करेगा, फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कितना फैक्टर है आपका, प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 2 है, करेक्ट, फाइब्रिनोजन फैक्टर 1 है। अब फाइब्रिनोजन इज आल्सो इनएक्टिव, सो फाइब्रिनोजन इज soluble in the plasma। अब फाइब्रिनोजन कन्वर्ट होगा इनटू फाइबर, और फाइब्रिन इज insoluble, मतलब ऐसे फाइबर्स बनेंगे, ठीक है। अब ये फाइब्रिन will be stabilized, this fibrin will be stabilized and there will be formation of a clot। मेशवर्क बन गया, देखो वॉश बेसिन का वो बन गया, जाली बन गया, ठीक है। ऐसे फाइब्रिन के मेशवर्क बनेंगे, तो भी आपको समझ रहे ना कि ये जो फाइब्रिन है ऐसे धागे 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 दे विल स्टार्ट फॉर्मिंग मेशवर्क। तो अब क्या होगा, जो पूरा का पूरा ब्लड वेसल डैमेज हुआ था वहां पे ऐसे मेशवर्क बन गए। So can I say अब जो ब्लड लीक आउट हो गया, जब जो ब्लड फ्लो होगा, that will be of lesser amount, correct, because of your this thing clot formation। अब इस क्लॉट में जैसे जैसे ब्लड फ्लो होगा बट कम अमाउंट में फ्लो होगा, अब ये फाइब्रिन में और क्या अटकेंगे, आरबीसीज। सो पूरा का पूरा ये जो गैप है, ये गैप का गैप पूरा भर जाएगा। So that is how your blood clotting completely successfully takes place। और कुछ दिन के बाद ये क्लॉट निकल जाती है, सूख जाती है, कपली बन के निकल जाती है, हम निकाल देते हैं। खुजली, हमको बहुत ज्यादा खुजली आती है तो मैं ऐसे ऐसे करके निकाल देते हैं। सो दैट इज दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आता है हमारा फैक्टर 12। समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो जो जहां पे भी अब ये आपको समझ गया कि पहला हाउ डज इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, वेरी क्लियर। मतलब इमेजिन कर लो कि ये अगर ब्लड वेसल है, अगर यहाँ पे क्लॉट, यहाँ पे दिस थिंग देयर इज एन इंजरी साइट, दिस इज द साइट ऑफ इंजरी। तो ये साइट ऑफ इंजरी पे क्या होगा, फाइब्रिन विल स्टार्ट फॉर्मिंग इट्स मेशवर्क, ठीक है। अब यहां से जो ब्लड लीक आउट होगा वो कम होगा, तो धीरे 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 दिस पर्टिकुलर देयर विल बी accumulation of RBC and this entire gap is being sealed। ये एनसी की वजह से ही काम हो रही है, पूरी की पूरी क्लॉट बन गई, ठीक है। और कुछ टाइम बाद क्लॉट निकल जाती है, कब निकलेगी, when there is successfully, जब सक्सेसफुली ये अंदर का लेयर, दैट इज ब्लड वेसल का अंदर का लेयर जैसे ही बन जाता है, दैट क्लॉट इज रिमूव, ठीक है। ये क्लॉट रिट्रैक्ट हो जाएगा, क्लॉट रिट्रैक्शन। सो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर करता क्या है, ब्लड वेसल की स्मूथ मसल सेल्स की ग्रोथ करवाता है। सो ब्लड वेसल्स की ये जो टूटे हुए स्मूथ मसल सेल्स है, ये स्मूथ मसल सेल्स को वो रीजॉइन कराएगा, एंड दैट इज हाउ इट विल सील कंप्लीटली। क्लॉट तो प्लग है, इट इज अ प्लग, टेम्पररी है, एमसील है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं है। परमानेंट काम कब होगा, जब पूरा का पूरा जो ब्लड वेसल रिपेयर हो जाएगा, एंड दैट रिपेयर इज डन बाय PDGF, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। इन सिंपल केस अगर आप एक छोटा सा इंजेक्शन भी लेते हो इन योर वेन्स, राइट, सो दैट पंक्चर, दैट इंजेक्शन का पंक्चर इज आल्सो एन इंजरी, करेक्ट। सो वो स्लाइट इंजरी है, अब
जैसे ही पंचर करते हो एंड यू रिमूव इट, सो दैट होल जो create हुआ है because of the injection, that will be immediately sealed out by the clot, and later it will be completely sealed by the help of platelet derived growth factor. ठीक है? So that ends with our topic with respect to blood. ठीक है? तो मैं फ्रेम से हट गया हूं बेटा, आप फटाफट इस चीज को कॉपी कर लो. एक छोटा सा टॉपिक बचता है, दैट इज लिम्फ. वी विल फिनिश अप लिम्फ एंड देन वी विल वाइंड अप फॉर टुडे. ठीक है? नेक्स्ट क्लास वी विल टेक अप मसल्स. हो गया? फ्रेम से हट गया, पॉज करके आप लिख सकते हो. चलो, so the next topic is lymph. Next tissue is altogether second type की tissue है lymph, also called as tissue fluid. ठीक है? एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग lymph का. ठीक है? What we have drawn here is a capillary bed. तो ये arteriole है, this is the arteriole. ये arteriole फिर branches out to form capillaries, और यहाँ से the venule, this is the venule. ठीक है? So this is your arteriole and this is your venule. Venule will unite to form veins. Capillaries will branch out to form capillaries. Sorry, arteriole will branch out to form capillaries. और ये पूरा का पूरा यूनिट जो है that is called as a capillary bed. क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे capillaries है. Capillary bed. Capillary is single walled. ठीक है? Whereas your blood vessels have 3 walls. It is a muscular tube. Whereas capillary is just a simple tube. ठीक है? इसके अंदर आपकी ये जो है ये आपके टिश्यूज है, ये सेल्स है. सो ऐसे बहुत सारे टिश्यूज होंगे बेटा. ठीक है? सो देयर आर सर्टेन लिम्फेटिक वेसल्स जो इनके बीच में से होंगे. ऐसे कुछ लिम्फेटिक टिश्यू के बीच में से पास होने वाले लिम्फेटिक वेसल्स होंगे बेटा.
ठीक है, सो होगा क्या, करेक्ट टू अंडरस्टैंड दीज आर योर लिम्फेटिक वेसल्स. अब व्हेन आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ अ पॉटेड प्लांट, करेक्ट. पॉटेड प्लांट को अगर आपने बहुत ज्यादा पानी दे दिया, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर विल ooze out from that soil and it will get collected at the dish. अगर मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें वो कलेक्टेड वाटर को वापस डाल सकता हूं into the potted plant, that is similar to your lymphatic system. So आप इमेजिन करो कि potted plant का soil is your tissue and what you are pouring is blood. ठीक है, कंटिन्यूसली अगर मैं ब्लड देते रहूं और टिश्यूज को एक्सेस जो फ्लूइड है दैट विल रिमेन इन दी, मतलब कुछ टाइम के लिए देखो पानी ऊपर ही रहता है. So the tissue will be bathing in the tissue fluid. और ये अगर बहुत ज्यादा एक्सेस में हो गया, ये सारे टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो जाएंगे और they will form lymph. ठीक है, so ये जो फ्लूइड है, this fluid from the tissue will enter. ये मैंने जानबूझ के खाली रखा है बेटा, क्योंकि डायग्राम खराब कर दूंगा तो ये समझ में नहीं आएगा, right? So from the tissue, the fluids will enter into the lymphatic vessels. ठीक है क्या बेसिकली lymph, it is derived from the blood, but since it is coming from the tissue, it is called as tissue fluid. ठीक है, so ये सारे जमा हो जाएंगे and they will unite, all of them they will unite and they will form a lymphatic vessel. They will form a lymphatic vessel and this lymphatic vessel will further join lymphatic vessel and this lymphatic vessel will further join to the subclavian vein. It will again join the circulatory system. जमा होगा, collect होगा, again it will join the circulatory system. That is subclavian vein. Subclavian is just below your clavicle. ठीक है, सब मतलब नीचे clavicle, clavian मतलब clavicle. Collarbone के नीचे वो जाकर join हो जाएगा. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज है कि इसमें क्या होंगे, इसमें WBC. When you talk about the color, let's write the properties here. So lymph क्या है? It is pale colored fluid. ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? It has pale colored है, इसका मतलब इसमें कोई RBC नहीं है. It only has WBCs, presence of WBCs and proteins. Now because WBCs show a process called as diapedesis, क्योंकि WBCs की सेल्स WBCs की स्ट्रक्चर इरेगुलर है, the WBCs show diapedesis. Diapedesis क्या बेटा? दो सेलुलर लेयर, अगर ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ठीक है, दो सेल के बीच में जगह है. So WBCs they show the flexibility. वो अपनी बॉडी को वो स्क्वीज आउट कर लेते हैं यहां से. So WBCs are motile and they will squeeze out from the intercellular spaces and that process squeeze out करके वो बाहर निकल जाएंगे and that process is called as diapedesis. So in this particular case also from the blood vessels only the WBCs, RBCs are very rigid cells. They will not be able to show diapedesis. But in this particular case WBCs can show diapedesis, इसलिए आपको lymph में WBCs दिखते हैं. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट इट विल आल्सो हैव प्लाज्मा प्रोटीन्स. बट अगर मैं प्लाज्मा और lymph में कंसीडर करूं, किसमें प्रोटीन ज्यादा होंगे? प्लाज्मा में ज्यादा होंगे, बिकॉज़ lymph is derived from plasma, राइट. सो पेल कलर्ड है, WBCs होंगे, प्रोटीन्स होंगे, बट प्रोटीन कंटेंट इज लेस देन प्लाज्मा. ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ lymph? पहला फंक्शन क्या है? बिकॉज उसमें इम्यूनिटी है और WBC है, सो एक फंक्शन है इम्यूनिटी. दूसरा फंक्शन क्या है? इट रिटर्न्स द फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, तीसरा चीज क्या है? हाइड्रेट्स द टिश्यू. टिश्यू will not get dried, desiccated, है ना. ठंडियों में हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाती है, but internally the organs are always moist because of the presence of lymph या tissue fluid. ठीक है बेटा.
तो लिम्फ में आपको इतना ही पढ़ना है. So for today we are done with successfully we completed WBCs and then we also spoke about platelets and platelets के बाद we also spoke about lymph. So हमारा connective tissue, that is fluid connective tissue, gets over in this particular section or module. ठीक है बेटा? So that is all for today. In the next class we will start up with the topic called as muscles. ठीक? So I will make a move right now. Take care of yourself. Enjoy your day. Happy Sunday to you guys. God bless you.